Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Simple Concepts. This video is about economic and financial affairs, and also we'll be talking about some general awareness topics which would be helpful in your UPSC, RBI Grade B and SEBI Grade A examination. So let's get started with our articles of November month. But before that, I would like to tell you all that Unacademy has come up with Unacademy Combat. It is a challenge, okay, in which you would be having some questions based on the course that you have chosen. Okay, if you are preparing for bank exams, then the questions would be based on the bank exams only, and if you are preparing for UPSC, then like that only. So the point here is that this is a gamified version. Okay, this is the gamified version of taking the test. As you all know that Unacademy always comes up with innovative ideas. So this is the, you can play and learn at the same time. Like whatever question you attempt, whatever answer you give, you would be able to get a video solution after that. So to get such kind of, learning, you can just register for it. Okay, so after registration, what you need to do is that you will get a rank upon based on which you would be getting एक्साइटिंग प्राइजेस फ्रॉम अनअकैडमी. अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मैं उसकी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बता देती हूँ. सबसे पहले आपको कोई भी पैसा नहीं देना है रजिस्ट्रेशन के लिए. इस चैलेंज के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है. आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है. ओके, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करने के बाद आपका जो भी गोल है, लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI, SEBI, द अदर बैंक एग्जाम्स, ओके, UPSC, ओके, वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, आपको आपका गोल उसमें वो वाला ऑप्शन चूज करना है. सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, यू हैव टू चूज दैट ऑप्शन. वो ऑप्शन चूज करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको टेस्ट सेक्शन में जाके, ओके, टेस्ट जहाँ पे लिखा रहता है उस सेक्शन में जाके आपको इस कॉम्बैक्ट को सिलेक्ट करना है. ओके, एंड उसके बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी. Okay, and you would be able to take this test. Okay, so this is one of the reasons that you should take this test, because this is going to provide you with the video solutions after every question, whatever you answer, whatever is the question. Okay, so you'll be able to get the video after that. And also this is the gamified version, so I think it's gonna be really interesting and you all should enroll for it. ओके, सो दैट इज़ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड. अब हम जो बात कर रहे हैं, रूही मैम की बात कर रहे हैं. शी इज़ recognized educator on Unacademy. There she handles all kinds of SEBI Grade E, RBI Grade B examination, and you can get her courses on Unacademy Plus. तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन करवाना पड़ेगा Unacademy पर. तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी पे जाके एक कोड यूज़ करना है, SC10. तो अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं, यू वुड बी एबल टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. Okay, by using this code. This is the referral code that you have to use. Okay, so do not forget to use this code when you are going for the subscription on Unacademy. Now these are the courses which are taken by Ruhi ma'am, like RBI Grade B, SEBI Grade A, Banking Financial Economic Awareness, current affairs for all bank exams, insurance awareness for all insurance exams. So these are some of the topics and these are some of the courses which are taken by by Ruhi ma'am on Unacademy Plus. तो आप सब्सक्रिप्शन के लिए भूले ना SC10 यूज़ करना है. एंड ऑल्सो यू शुड यूज़ दिस कोड SC10 वेन एवर दे आस्क यू फॉर एनी इन्वाइट कोड टू एक्सेस एनी ऑफ द कॉन्टेंट विच इज़ अवेलेबल ओवर देयर. Okay, like if you want to access any content which is free, like videos, PDF, mock test, and they are asking for invite code, then use the code SC10. ये code use करके आपको सारे जो भी unlocked चीज़ें हैं वो open हो जाएंगी. Okay, and this is the channel of Ruhi ma'am, like Simple Concepts by Ruhi ma'am. On this channel you would be able to get the information related to the upcoming courses, the YouTube videos, and also the study material which she is providing for your course. Okay, so this is our YouTube, this is our Telegram channel.
सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द आर्टिकल्स नाउ। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जल जीवन मिशन की। ठीक है, हमने जल जीवन मिशन इससे पहले कई सारे वीडियोस में पढ़ चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं देन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच ऑल दोज वीडियोस बिकॉज दैट इज not just about the articles of November month. Okay, we have comprehensively discussed each and every topic there. जैसे कि हम यहाँ पे जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हाउ आई हैव डन इन अदर वीडियोस, मैं आपको एक बस तरीका बता रही हूँ। अगर हम जल जीवन मिशन, इसमें आर्टिकल में ये वर्ड आया है, तो हमने जो वीडियोस हैं उसमें डिस्कस किया है सबसे पहले कि जल जीवन मिशन है क्या। ओके क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता दैट व्हाट इज JJM, यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, यू वुड नॉट बी एबल टू कनेक्ट। तो उसके लिए हमने JJM को डिस्कस कर लिया है। तो फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार शॉर्ट में बताना चाहूँगी। तो द पॉइंट हियर इज दैट जो आपका JJM है उसमें ये बोला गया है जो जितने आपके रूरल हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पे आपको टैप कनेक्शन के थ्रू पोर्टेबल एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंडर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ओके, जल जीवन मिशन। तो ये छोटी सी बात है, मैंने आपको बता दी। सो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है दीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दैट वेयर JJM हैज स्टार्टेड अप टू वेयर इट हैज बीन completed and where it has reached. It is not going to, the examiner is not going to ask you these kind of questions. Instead they would want to know that whether the students who are preparing for the government services, do they even know that what are the schemes which are run by the government of India? Do they even understand that what does this scheme is going to do to the people? Okay, so that is the point here. So जो आपका JJM है यहाँ पे उसका एक अपडेट मिला है that it has reached remote माइमी विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये रिमोट एरिया है काफ़ी, माइमी विलेज अरुणाचल प्रदेश में JJM के थ्रू पानी पहुंचाया गया है। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। Okay, the scheme for providing water supply to Maimi village has been approved by state level scheme sanctioning committee and proposed to be completed by March 2021 तक आपका ये जो स्कीम है अरुणाचल प्रदेश के लिए चलाई जा रही है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। ओके तो अब इसको अप्रूवल दिया है आपके स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शनिंग कमिटी। अब ये क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो इसको अप्रूवल जिसने दिया है, every state okay has SLSSC which essential works at state level technical committee and provides approval for scheme. See the point here is that क्या centrally sponsored schemes को परमिशन लेने की ज़रूरत है, और अगर है तो क्या ये अथॉरिटी जो आपकी सेंट्रल स्कीम को चला रहे हैं उससे बड़ी है? द आंसर हियर इज नो, उससे बड़ी नहीं है और ना ही ये उनको ओवर पार कर पाएगी। बट द पॉइंट हियर इज दैट दिस SLCC जो SSC जो है ये हर स्टेट में होती है, एंड जो आपके सेंटर से लोग आ रहे हैं स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए ओके तो उनको हेल्प करने के लिए SLCC अपना अप्रूवल देती है कि जो स्टेट की कंडीशन है, जो स्टेट की टोपोग्राफी है, क्या वो अलाउ करती है आपको वो स्कीम चलाने के लिए। मान लीजिए जो JJM है आपका जल जीवन मिशन, उसमें पाइपलाइंस का यूज़ किया जाएगा। अब जो पाइपलाइंस का आप यूज़ करेंगे क्या उनको ले करने के लिए वो अप्रोप्रिएट टोपोग्राफी है भी या नहीं, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है स्टेट की वो प्रॉपर है भी या नहीं। सो दैट इज द पॉइंट। द सम ऑफ द टेक्निकल this is a technical committee so that they work upon these technical things कि क्या वहाँ के चीज़ें हैं जो वहाँ की कंडीशन से वो अलाउ करती है ये स्कीम के लिए या नहीं। सो दैट इज़ द पॉइंट हियर। सो अप्रूवल का मतलब वही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ये जो कमिटी है it is going to overpower the centrally the central authority. It's not like that. Okay, so SLSSC headed by Chief Secretary, Principal Secretary, Secretary in charge of PHED, RWS department as the case may be. तो यहाँ पे सी वही बात है कि जो आपका स्टेट है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, जो सेंटर की स्कीम है उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान की जो बात कर रहे हैं दे आर सेइंग दैट कि
आपको नहीं पता कि हमारे स्टेट में क्या कंडीशंस है, आपको नहीं पता कि ये जो लोकेलिटी है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं और जो हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। ओके, जो आपका यहाँ पे एनवायरमेंट है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, एंड देयर आर मैनी अदर थिंग्स, द पीपल शुड नॉट बी अफेक्टेड। तो वही बोल रहे हैं वो लोग कि जो SLSSC है वो यही सारी चीज़ें देखता है, एंड उन्होंने अप्रूवल प्रोवाइड कर दिया है जो अरुणाचल प्रदेश के मायमे गांव के लिए अप्रूव की गई है ये स्कीम। ओके, सो दैट इज द होल पॉइंट। Now, Haryana Assembly passes bill on 75% job quota in private sector of locals. ठीक है, तो ये न्यूज़ काफ़ी पुरानी है, लेकिन इट कुड बी आस्क्ड कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर भी 75% जॉब सिर्फ और सिर्फ लोकल पीपल को दी जाएंगी। सो द आंसर वुड बी हरियाणा। ओके, तो बिल भी पास कर दिया गया है। तो ऐसा स्टेप इसलिए लिया गया है बिकॉज दिस वॉज लाइक अर्लियर इट वॉज स्नैचिंग द जॉब्स फ्रॉम द यूथ ऑफ हरियाणा। तो जो हरियाणा के लोग थे उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही थी, तो इट वॉज अ स्टेप टेकन बाय हरियाणा गवर्नमेंट कि हम सबसे पहले अपने यूथ को like 75% of the people would be from Haryana, हम अपने यूथ को सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे जॉब्स, एंड आफ्टर दैट वी विल बी प्रेफरिंग द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट। सो दैट इज द पॉइंट हियर। तो कोटा विल बी एप्लीकेबल फॉर जॉब्स। हाँ, अब इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ये जो कोटा है ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनकी सैलरी लेस देन 50,000 है। ओके, 50,000 के ऊपर वाले जितने भी जॉब पोजीशंस है वो बाहर के लोगों को भी दिए जा सकते हैं। 75% कोटा इज नॉट एप्लीकेबल देयर। सो इट अप्लाइज टू प्राइवेट कंपनीज, सोसाइटीज, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म्स among others located in the states. So these are some of the firms where it is applicable. Now Tamil Nadu tops Indian states in new investments in H1 FY21 care ratings. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज केयर रेटिंग। केयर रेटिंग को समझना ज़रूरी है। जो आपकी केयर रेटिंग है वो एक स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करती है, ओके, जो आपकी क्रेडिट रेटिंग है उसको। ओके, सो जो क्रेडिट रेटिंग है आपके किसी भी स्टेट में या किसी भी कैपिटल में, उसका स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करती है, होल पिक्चर। इट डिपिक्ट्स द होल पिक्चर ऑफ द कॉर्पोरेट्स। ओके, तो आपका जो भी फॉर्म है, जो भी कॉर्पोरेट है, वहाँ पे क्या क्रेडिट का क्या सीन है, जो क्रेडिटर्स है वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये उसी का एक स्टोरी बताता है हमें शॉर्ट में। ओके, जो केयर रेटिंग होता है, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। अब देखिए, इसमें दो तरीके से रेटिंग दी जाती है। पहली है वो केयर ए। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विद दिस रेटिंग केयर ए, दे आर कंसिडर्ड टू हैव एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। सच इंस्ट्रूमेंट्स कैरी लो क्रेडिट रिस्क। जो आपके केयर ए रेटिंग वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अच्छे होते हैं, उनके पास लो क्रेडिट रिस्क होता है। ओके, दैट मीन्स दे आर सेफर एज कंपेयर्ड। अब दूसरे कौन सी रेटिंग है वो है केयर ट्रिपल बी। जो इन रेटिंग के साथ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू हैव मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी। Okay, they are not entirely unsafe, but they have moderate degree of safety and timely servicing of financial obligations. Okay, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जो केयर ए है उनके पास फिनेंशियल एसेट्स ज़्यादा हैं, और जो केयर ट्रिपल बी वाले रेटिंग वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर कॉर्पोरेट्स है या फिर फर्म्स है, उनके पास फिनेंशियल जो एसेट्स है वो कम है एज कंपेयर टू द other one. So this basically means that it is less safer as compared to care A. So that is the point here. Now let's understand जो आपका तमिलनाडु है उसने क्या अचीवमेंट अभी रिसेंटली पाया है. So तमिलनाडु टॉप्स टेबल फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट. Okay, so it has managed to grab 16% of the funds amounting to 2,000 crores that come into India during the period. ओके, तो 16% फंड्स सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु स्टेट्स में ही इन्वेस्ट करे गए हैं, ये कहने का मतलब है. ओके, सो इट इज़ अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट. जो आपका आंध्र प्रदेश है उसने 11% अट्रैक्ट किया है, और जो महाराष्ट्र है और राजस्थान है, कर्नाटका में 7% सब जगह.
इन्वेस्ट किया गया है. सो न्यू प्रोजेक्ट्स अनाउंस्ड बाय H1FY21 fell sharply by 69% to rupees 1.5 trillion compared with rupees 4.8 trillion last year. ओके तो ये कुछ बातें हैं, हमें वो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताऊँ. ओके तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, ओके यहाँ पे सिर्फ वही बताया गया है कि जो आपके डिफरेंट सेक्टर्स है वहाँ पे कितना अर्न किया, कितना लूज किया, कितना परसेंट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ग्रोथ हुआ. सो इट्स अबाउट द डेटा. ओके सो केयर रेटिंग हमने समझ ही लिया. सो इट वॉज ऑल अबाउट दैट. यू जस्ट नीड टू नो दैट अकॉर्डिंग टू केयर रेटिंग. वैसे ये रेटिंग्स वाले क्वेश्चन आते बहुत कम है बिकॉज सी देर आर सो मैनी कंपनीज विच आर गिविंग देयर ओन रेटिंग्स. ओके आपको भी पता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें भी रिसेशन, डिप्रेशन, ओके जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आपकी जीडीपी है, वो कितने सारे फॉर्म्स उनके फोरकास्ट सामने रख देते हैं निकाल के. द गवर्नमेंट एग्जाम्स, in the government exams they are not going to ask you each one of them. Okay so that is the point here. But you should know, okay, it's good for the general awareness as we are studying that only. So Uttar Pradesh among top 5 in MSME employment generators amid COVID-19. तो देखिए MSME employment में जो आपका उत्तर प्रदेश है, it is the topmost state. According to RBI report, Uttar Pradesh has secured place among top 5 MSME employment generators amid COVID-19. ठीक है, आपके कोरोना के टाइम पे जो उत्तर प्रदेश है वो टॉप 5 में आ गया है. और ऑलरेडी जो टॉप 5 में थे वो थे मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र. तो ये MSME एम्प्लॉयमेंट की बात करें. MSME आपको पता है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ओके जो बिग फर्म्स हैं उनसे जो छोटे हैं, ओके जो छोटे लेवल पर काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वॉट एवर दे डू, दे आर द स्मॉलर वंस. So Uttar Pradesh government not only managed the return of about 40 lakh migrants from all over the country but also took up wondrous टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट. तो उत्तर प्रदेश ने काफ़ी अच्छा किया है कोविड-19 के टाइम पे इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट. आप मुझसे लड़ने मत लगना कि नहीं ऐसा कैसे अच्छा कर दिया, इतने लोग मर गए और ये वो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं. इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओके एम्प्लॉयमेंट जो MSME एम्प्लॉयमेंट है वो उन्होंने काफ़ी प्रोवाइड किया है. जो उनके माइग्रेंट्स लौट कर आए थे उनके स्टेट में, मैं उसकी बात कर रही हूँ. द स्टेट गवर्नमेंट साइंड MOUs विद वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर क्रिएशन ऑफ 11 lakh जॉब्स विद इन अ ईयर. ओके सो एक नया पोर्टल साथी. अब क्वेश्चन बन गया यहीं से कि साथी जो पोर्टल है वो कौन से स्टेट में आपका लॉन्च किया गया. योगी ने लॉन्च किया आपका साथी. ठीक है, योगी का साथी साथी याद रखिएगा आप, योगी का साथी साथी. सो why it's been launched? Because it is going to help the entrepreneurship set up new units. ओके तो आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हेल्प आउट करने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है योगी जी ने, हमारे साथी. सो द गवर्नमेंट ऑल्सो प्लान्स टू सेट अप 1000 न्यू MSME यूनिट्स अक्रॉस द स्टेट्स इन इट्स एफर्ट्स टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट. तो वही बात हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है जो यूपी स्टेट के द्वारा, तो वो काफ़ी अच्छी बात है. Okay, so that was all about it. Now what we are going to study is hiking import duties won't promote manufacturing or improve exports. काफ़ी इंटरेस्टिंग हेडलाइन है. उन्होंने बोला है कि आप जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं उनको बढ़ा रहे हैं, क्या उससे आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा या फिर आप उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा देंगे अपनी कंट्री में. सो दैट इज़ द पॉइंट हियर, राइट, दैट इज़ द पॉइंट, राइट. सो यही रिपोर्ट में बोला गया है कि आप इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा के अपने देश में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, ना ही वो मैन्युफैक्चरिंग करके आप बाहर एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो यही बोला है. तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ मत लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा. अगर आप इम्पोर्ट पे ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा रहे हैं, जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, दैट डज नॉट मीन that it is going to help us in any way. Okay, so higher duties will not promote competitive manufacturing but may lead to inefficiency. अब see, it is very understandable
कि आप अगर imports पे हाई ड्यूटी लगा रहे हैं, इस सी द रिपोर्ट्स हैव ऑलरेडी शोन दैट इंडिया इज द नेट इम्पोर्टर. ओके, आपका जो इंडिया कंट्री है वो नेट इम्पोर्टर है, उसने ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट किया है और लेस एक्सपोर्ट किया है, तो हम नेट इम्पोर्टर हैं. तो वही यही बोल रहे हैं कि आप इम्पोर्ट पर अगर हैवी ड्यूटीज़ लगा देंगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप इन एनी वे. ठीक है, ऐसा तो है नहीं इम्पोर्ट बंद हो जाएगा. इंस्टेड ये जो आपका कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग है उसको कम कर देगा. ठीक है, अगर कंपटीशन नहीं है किसी भी चीज़ में, सो दैट मीन्स दैट द सीन इज डेड. ओके, द सीन इज डेड देयर, बिकॉज इफ देयर इज नो कंपटीशन, हाँ भाई हम तो अपने में अच्छे हैं, वो कुएं का मेढक होता है ना कि हम तो अपने में ही अच्छे हैं. सो इट इज़ लाइक दैट ओनली. ओके, सो दिस मे लीड टू इनएफिशिएंसी. अब a mere 1% hike in import duties leads to $2 billion worth decline in imports on average. Okay, so since 2000, successive governments have been eyeing a quarter of GDP to come from manufacturing by 2025. तो साल 2000 से it has been the main focus कि आपका 2025 तक जो 1/4 GDP का पार्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग से आएगा, ऐसा फोकस किया जा रहा है. ओके, इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी ग्लोबली. तो हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स में अगर बोले तो. सी, कंट्रोलिंग 3% ऑफ ग्लोबल आउटपुट, वेयर एज चाइना कंट्रोल्स 18% ऑफ ग्लोबल आउटपुट. ओके, सो यहाँ पे हो रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कि चाइना में 18% ग्लोबल आउटपुट दिया जा रहा है. ओके, बाहर से कंट्रीज आ रही हैं चाइना में और 18% इन्वेस्टमेंट है बाहर की कंट्रीज का. जो हम हैं वो क्या कर रहे हैं, ओनली 3% ग्लोबल आउटपुट. अब इसका रीज़न क्या है आप बता सकते हैं? सी, द रीज़न इज़ वेरी सिंपल हियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एज वेल. आई टेल यू दैट व्हाट इज़ द रीज़न. आपका जो इंडिया है और आपका चाइना हो गया, ठीक है, आज इन दोनों की देखिए लड़ाई तो चल ही रही है, हम भी थोड़ा सा कर लेते हैं बात. देखिए, अब पहली चीज़, अब यहाँ पे क्या है, इंडिया के पास है 3%, चाइना के पास है 18%. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बात आती है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, बहुत सिंपल सी बात है. इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, चाइना में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ ज़्यादा है? यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, परचेजिंग पावर ज़्यादा है. ओके, परचेजिंग पावर आपकी चाइना की ज़्यादा है, तो कंपनीज कहाँ जाना चाहेंगी? चाइना जाना चाहेंगी ना, बिकॉज सी दे कैन सी दैट चाइना ऑफर्स मोर. So because of that, they are going to China. They are establishing their firms, their companies, their manufacturing units in China. So that is the reason here. So this is another article. Go Electric campaign of BEE AP to set up 400 electrical vehicle charging stations. ओके, तो आपका गो इलेक्ट्रिक कैंपेन चलाया जा रहा है जो कि लॉन्च किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी in coordination with Andhra Pradesh State Energy Conservation Mission and Non-Conventional Renewable Energy Development Corporation of Andhra Pradesh. ठीक है, तो ये दो एजेंसीज हैं जिन्होंने मिलकर चार्जिंग स्टेशंस को स्टैब्लिश करने के लिए कैंपेन चलाया. सो AP स्टेट गवर्नमेंट इज टू सेट अप 400 electric vehicle charging all over the state to promote the usage of electric vehicles. Why do you think that electric vehicles are being promoted? So the answer is that कि जो electric vehicles हैं वो आपके less pollution create करेंगे, है ना, यही बात है ना, आपका less fuel burn होगा, less petrol would be burned, then the less pollution would be there. Okay, the air would be cleaner. तो इसीलिए आपके electrical vehicles को support किया जा रहा है. Now ये जो this body has coordinated with the International Center for Automotive Technology to set up setting facilities with an investment of rupees 250 crores. ओके, तो MOU साइन किया गया है आपका
Energy Efficiency Services Limited to deploy electric cars. More than 300 electric cars have so far been deployed at various government organizations. Okay, NRED CAP has signed. ये आपके साइन हुए हैं. Okay, so I don't think so there is anything important related to it. ओके हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. उनका जो एम है, जो उनका गोल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एवरी 3 किलोमीटर ऑफ रोडवेज इन द सिटीज़ एंड एवरी 25 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे शुड हैव अ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये अभी अचीव नहीं हो पाया है, ऑब्वियस सी बात है, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द फ्यूचर. ओके, सो दिस इज़ अबाउट इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग हेल्ड वर्चुअली. सो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कैसे ही वी आर नॉट लाइव, तो आप ये एक चीज़ ट्राई टू रिमाइंड योर सेल्फ दैट व्हाट इज़ ओपेक फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है, एंड आपको पता भी होना चाहिए कि इस हेडलाइन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है ओपेक. तो ओपेक क्या होता है? ओपेक होता है आपका ऑयल, पेट्रोलियम, ठीक है, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग companies. Oh sorry, it's countries. तो आपका ये हो गया ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. तो अब क्या करते हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं आपके ऑयल और पेट्रोल को. तो इसमें आपके जो गल्फ के नेशंस हैं, ओके, तो आपके गल्फ नेशंस आ जाते हैं, जैसे कि आपके हो गए कौन कौन. Let's talk about them now. We are starting with Iran. आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, आपका सऊदी तो आएगा ही, है ना. तो ये जो कंट्रीज़ है, ये अपना इकॉनमी, इनका जो मेजरली डिपेंड करता है वो एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है, ऑयल और पेट्रोलियम के. ओके, सऊदी हो गया आपका, ओमान हो गया, एंड आपका UAE हो गया. So these are some of the countries which are called OPEC countries. और रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, बिकॉज दे एक्सपोर्ट ऑयल एंड पेट्रोलियम. सो ओपेक मेड 78% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल. अब देखिए, वो एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है. इसका मतलब जहाँ पे वो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया, तो इंडिया में क्या होता है, 78% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल डिमांड, 59% of its LPG needs and nearly 38% of LNG consumption. तो ये सारे हमारी जो चीज़ें हैं, ये इम्पोर्ट होती हैं आपकी ओपेक कंट्रीज से. सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया टू मेंटेन गुड रिलेशन विद ओपेक कंट्रीज, टू मेंटेन गुड रिलेशंस इन द गल्फ नेशंस. ठीक है, तो ये आप इंटरनेशनल रिलेशन के नज़रों से देखें तो आपको समझ आ गया होगा दैट वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट. ये छोटे छोटे पॉइंट से ही आपको समझ आएगा दैट वाई कोऑपरेशन इज़ नीडेड. ओके, क्यों इंडिया ने ऐसा किया, क्यों इंडिया ने वैसा किया. ठीक है, सो दैट इज़ द. अभी आप सोचेंगे क्यों मोदी जी वहाँ पे गए, उन्होंने सऊदी अरेबिया का वो हाईएस्ट ऑनरी अवार्ड या मेडल जो भी था वो ले लिया, क्यों, इसलिए ले लिया. अब आप समझ रहे हैं कि वो क्यों अच्छे रिश्ते रखना चाहते. सो दैट इज़ द पॉइंट हियर. इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर इन द वर्ल्ड बिटवीन. क्योंकि अगर देखिए, इंडिया अगर लड़ाई करके बैठ जाए आपके गल्फ नेशन से छोटी छोटी बात पे, वैसे हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं गल्फ नेशंस के साथ, तो अगर इंडिया छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करके बैठ जाए तो आपके पास तेल नहीं होगा, आपके पास LPG नहीं होगा, आपके पास LNG नहीं होगा. हाउ इंडियन इकोनॉमी इज गोना बी कोलैप्स्ड. यू कांट इवन इमेजिन. आपके घरों में चूल्हा नहीं जलेगा. सो दैट इज़ द पॉइंट हियर. Between the period of 2000 and 2015, overall imports of oil from OPEC countries in India grew from $2 billion to, देखिए आप, इतने का ट्रेड होता है. ओके, तो इसीलिए इनका जो डायलॉग है, इट वॉज हेल्ड वर्चुअली. तो वर्ल्ड ऑयल आउटलुक, ये जो एक रिपोर्ट थी 2020 की, it has projected that India will account to 16% of global economy by 2045.
ऐसा इन्होंने बोला है दैट इंडिया हमारी जो है वो 16% ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगी बाय 2045। ओके, पर डे ऑयल डिमांड। अब देखिए ऐसा क्यों है कि जो ऑयल डिमांड है इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी, बिकॉज सी जो भी कंट्री जितना ज़्यादा ऑयल यूज़ कर रही है या ये जो रिसोर्सेज हैं वो जितने ज़्यादा यूज़ कर रही है, इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट उतना ही ज़्यादा है ये रिसोर्सेज का। एंड ये इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और ये इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, सो दैट मीन्स दैट इट इज़ ग्रोइंग मोर। सो ये इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। I hope you all are getting what I'm trying to teach, like what I'm trying to tell you all, how I'm getting you all connected to the topic. Okay. So UP launches special campaign to identify people suffering from TB. ये मलेरिया की हमने बात कर ली, कोरोना चल ही रहा है, चलो अब टीबी भी पढ़ लेते हैं, टीबी में भी क्या ये है ना। सो यूपी गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ स्पेशल 10-day कैंपेन। ठीक है, जो यूपी गवर्नमेंट है इट हैज़ लॉन्च दिस कैंपेन फॉर 10 days इन विच द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम टीबी दे विल बी identified. It has covered 29 districts of the state. Health workers reached out to 81 lakh people, identified those suffering from TB, screened them and helped them avail treatment at no cost. ठीक है, तो आपको फ्री में ट्रीटमेंट किया जाएगा, आप बस मिल जाओ। ठीक है, जिसको भी यूपी गवर्नमेंट ऐसे है कि भाई टीबी वाले लोग बस मिल जाओ, ट्रीटमेंट हम खुद कर देंगे आपकी, आपको पैसा नहीं देना, आप बस हमें मिल जाओ। है ना, सो इट्स लाइक दैट ओनली। सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स वर्किंग टू मेक इंडिया टीबी फ्री बाय 2025। ओके, नो टैक्स फॉर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स टिल 2022 तमिलनाडु गवर्नमेंट। अभी आपको पता ही है कि तमिलनाडु ने क्या किया है। ओके, उन्होंने बोला ही है कि जो हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल्स हैं वो स्टेशन बनवाना चाहते हैं। ओके, सो वो कहाँ, आंध्र प्रदेश में था, हाँ ये एपी में है, वो एपी में। ठीक है, तो उसके बगल वाले तमिलनाडु ने बोला ठीक है आप इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल्स को एनकरेज कर रहे हैं, हम बोलेंगे कि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स पे कोई टैक्स नहीं लेंगे हम 2020 तक। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स फ्रॉम द पेमेंट ऑफ मोटर व्हीकल टैक्स टिल द एंड ऑफ 2022। ओके, so now we are talking about India's October unemployment rate climbs up to 6.98%. So here we are talking about our favorite topic and that is unemployment. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। मोदी जी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मोदी जी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, है ना, ये नारा लगाने का दिल से मन करता है ना, दिल से एकदम आवाज़ निकलती है एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। सो जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पहुंच चुकी है 6.98%, दैट इज़ नॉट गुड। ओके, एंड आई होप यू ऑल नो दैट हाउ इज इट बैड फॉर अस। So according to recently released data by the Center for Monitoring Indian Economy, India's unemployment rate in October rose to 6.98% from 6.67% in September 2020. ओके, तो रेट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, खत्म खत्म टाटा बाय बाय। है ना, सो इट्स लाइक दैट ओनली, खत्म टाटा बाय बाय। एम्प्लॉयमेंट इज लाइक we are here, employment is here, employment be like khatam tata bye bye। be like no don't go। okay, so it's like that only। about Center for Monitoring Indian Economy, it is the leading business information company headquartered at Mumbai। ठीक है, तो उसने ये रिपोर्ट रिलीज करी है, जो फॉर्म है उसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। देखिए इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन क्या कोई भी इकोनॉमी है वो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। सो वही रिपोर्ट निकाली गई है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल रिजल्ट्स, 100% स्कूल रिजल्ट्स। रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मिशन 100% फॉर 2020 and 21। स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तो जो गवर्नमेंट
है पंजाब की, उसने 100% नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है, जिसके अंडर जो स्कूल्स है उनको एम्पावर किया जाएगा टू अचीव 100% रिजल्ट्स डिस्पाइट कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, तो फीचर्स क्या क्या है इसके, लेट्स अंडरस्टैंड। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन जो स्टडीज़ हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, जो डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एम्पावर किया जाएगा इन स्कूल्स। कैसे एम्पावर करेंगे? थ्रू ई बुक्स, एड्यूसेट लेक्चर्स, ई कंटेंट, ऑनलाइन क्लासेस, ब्रॉडकास्ट ऑफ लेक्चर्स थ्रू टेलीविजन एंड वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर्ड बाय द teachers. Like I am preparing the lectures and delivering it right now, so I am also empowering the digital education, right? I'm also supporting this this mission, although I do not belong to Punjab, but yeah, I'm anyhow supporting this mission, है ना। So let's move ahead। आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, it has released rupees 6,000 crore as the second tranche of GST compensation under special borrowing window। ठीक है, तो इसकी बात हम कर चुके हैं, एक वीडियो नहीं, 2 वीडियो नहीं, 4 वीडियो नहीं, हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं हमने सब में ऑलमोस्ट इसकी बात करी है। ओके, क्योंकि जीएसटी कॉम्पेंसेशन है कि वो नाम ही नहीं ले रहा ख़त्म होने का, सो यहाँ पे भी हम उसकी बात करेंगे नाउ दैट इट इज़ देयर, सो वी नीड टू टॉक अबाउट इट, है ना। सो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोड ट्रांसफर्ड रुपीज 6,000 crores a second tranche on account of GST compensation to 16 states। ओके, आपके 3 यूनियन टेरिटरी और 16 स्टेट्स को जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन है वो भेजा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उन्होंने पैसा पहुंचाया है, पेटी पहुंचाई है। सो द बोरोइंग इज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 4.42%। ओके, with this the government has facilitated total loans of rupees 12,000 crore to date under the special window program। हाँ, चलिए आगे हमारा पॉइंट। अब जो लोग पहले से वीडियो नहीं देख रहे हैं उनके लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्या है, क्या है, क्या है भाई आपका स्पेशल विंडो प्रोग्राम, ये क्या है? देखिए कुछ नहीं है, स्टेट्स को चाहिए था कॉम्पेंसेशन, गवर्नमेंट को पे करना था। स्टेट्स क्या करेंगे कॉम्पेंसेशन लेके? वो उनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं स्टेट में, जो स्टेट इकोनॉमी है उसको मैनेज करने के लिए पैसे तो चाहिए ही होंगे, तो उन्होंने गवर्नमेंट से जब जीएसटी कॉम्पेंसेशन कब स्टार्ट हुआ था, जब हम जीएसटी रेजीम में एंटर किए थे, तब गवर्नमेंट ने बोला था दैट वील बी प्रोवाइडिंग यू विद द जीएसटी कॉम्पेंसेशन फॉर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, वही कहानी मैं फिर से दोहरा रही हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में दोहराई थी, क्योंकि जो लास्ट वीडियो है वो कई लोगों ने नहीं देखी होगी, तो इसमें जिन्होंने देख रहे हैं उनके लिए वी आर अगेन डूइंग इट। सो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि 2 तरीके से जो स्टेट्स है वो हमारे गवर्नमेंट से कॉम्पेंसेशन ले सकते हैं। पहला तरीका क्या है, जो स्टेट्स है आपके, ठीक है, वो डायरेक्टली आपके मार्केट या बैंक्स, ठीक है, इनसे डायरेक्टली लोन ले ले। स्टेट्स ने बोल दिया नहीं। दूसरा तरीका क्या है, स्टेट्स है आपके, वो गवर्नमेंट से लोन ले ले, गवर्नमेंट जो है वो बैंक से लोन ले ले। स्टेट्स ने कहा हाँ, तो यही जो प्रोसेस है इसी के अंडर जो आपके स्टेट्स हैं उनको अभी तक गवर्नमेंट टोटल 12,000 crore रुपीज़ दे चुकी है टू डिफरेंट स्टेट्स। लाइक हियर ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज, जिनका बोरोइंग रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट है 4.42%। तो आपको क्यों लगता है कि स्टेट्स जो है वो स्पेशल विंडो प्रोग्राम के थ्रू जीएसटी कॉम्पेंसेशन रिसीव कर रहे हैं? लाइक व्हाई दे आर ऑप्टिंग फॉर दिस ऑप्शन ओनली? 2 ऑप्शन थे ना उनके पास, तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं चूज़ किया होगा? व्हाई डू यू थिंक दैट? सी आई विल टेल यू, जो स्टेट्स है वो अगर डायरेक्टली बैंक से लोन लेते हैं देन दे विल हैव टू पे फॉर मोर इंटरेस्ट रेट्स। Okay, they will have to pay for high interest rates, so that's why government is taking loans from the market and banks and states are taking loan from government, so this is basically reducing the interest rates that the states would have to pay to the government। ठीक है, क्योंकि जब गवर्नमेंट
जो लोन लेगी आपके, जो बोरो करेगी मार्केट या लोन से, उनको कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा एज कंपेयर टू द स्टेट्स। ठीक है, तो वही इसीलिए उन्होंने सेकंड विंडो प्रोग्राम को ऑप्ट किया। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बोरो रुपीज़, ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि 1.1 लाख करोड़ वो बोरो करेगी अंडर दिस स्पेशल विंडो to meet the shortfall of GST compensation. It will be passed on to states as back-to-back loans instead of GST compensation cess. ठीक है, तो वही है। Now खादी created employment in कारगिल। अब आपका जो खादी है, ठीक है, हमारे महात्मा गांधी जी का खादी, इट हैज़ क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट कारगिल ले, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। बिकॉज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो आपका KVIC है, इट हैज़ सेट अप डिफरेंट स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन कारगिल। तो आर्टिकल जो है आपका 370 और 35A हटने के बाद जो आपके जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल रहे हैं लोग बाहर के स्टेट से आकर, जो पहले वो नहीं कर सकते थे। सो दिस इज़ अ गुड साइन फॉर द पीपल ऑफ दोज यूनियन टेरिटरीज, राइट? So KVIC has set up nearly 1,000 different small and medium manufacturing units under its flagship Prime Minister Employment Generation Program. ठीक है, आपका जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसके अंडर ये खोले गए हैं। सो जो आपकी KVIC है, इट हैज़ क्रिएटेड ओवर 80 to 100 एम्प्लॉयमेंट्स फॉर लोकल यूथ्स इन जस्ट 3.5 years इन कारगिल एंड ले। ओके, नाउ दिस इज अबाउट PMEGP, आपका प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको ये नहीं लग रहा कि इस स्लाइड में हमने, मतलब इस वीडियो में हमने बहुत बात करी है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। सो ये जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, दिस स्कीम has been launched by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, the MSME department. So implemented by Khadi and Village Industries Commission, KVIC. Objectives क्या क्या है? To provide continuous and sustainable employment to a large segment of traditional and prospective artisans, rural and urban unemployed youth in the country through setting up of micro enterprises. ओके, तो जो आपकी यूथ है रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में जो अनएम्प्लॉयड है, जो आपके आर्टिसंस हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए माइक्रो एंटरप्राइजेस खोले गए हैं, जो आपकी KVIC है, जिसमें उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, दे विल बी गिवन वर्क। फीचर्स क्या क्या है? द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यूनिट एडमिसिबल अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ₹25 lakh एंड अंडर बिजनेस सर्विस सेक्टर इज ₹10 lakh. Okay, so per capita investment should not exceed ₹1 lakh in plain areas. ओके, तो ये कुछ कैप बना दिए गए हैं कि पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट के लिए 1 lakh प्लेन एरियाज में और 1.50 lakhs इन हिली एरियाज। ओके, सो ओन कॉन्ट्रीब्यूशंस 5 to 10% of the project cost. General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25% of the project cost in rural areas and 15% in the urban areas. Okay, so for beneficiaries belonging to special categories such as SC, ST, women, the margin money subsidy is 35%. ओके, तो इनके अंडर जो भी अपना काम खोलना चाहते हैं, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हैं, तो उसमें से जो जनरल कैटेगरी है उनको 25% मनी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी बाय KVIC और 15% रूरल अर्बन एरियाज में एंड 25% इन रूरल एरियाज। अब SC, ST और जो वुमेन है, ठीक है, उनको मनी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी 35% इन रूरल एरियाज एंड 25% इन अर्बन एरियाज। So that's about it. Now we are studying about Vigilance Awareness Week. Okay, so Vigilance Awareness Week is observed in India to fight against corruption and to ensure integrity in public administration. ठीक है, तो ये आपके करप्शन ना हो, आपके जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे बायसनेस ना हो, ओके, वहाँ पे भी करप्शन ना हो,
इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए दिस वीक इज सेलिब्रेटेड. सो विजिलेंस अवेयरनेस वीक हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन फ्रॉम 27th October to 2 November. ओके, थीम क्या थी? सतर्क भारत समृद्ध भारत, विजिलेंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया. ठीक है, तो सतर्क भारत पढ़ के मुझे एकदम से अनूप सोनी जी, हमारे क्राइम पेट्रोल के जो वो है देवता, उनकी याद आ गई. सतर्क रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, है ना. तो ये वही याद आ गया मुझे. So recent initiatives launched by government in Vigilance Awareness Week 2020 जो आपके मिनिस्टर हैं for personal public grievances and pensions and launched the Department of Administrative Reforms and Public Grievances Ideas Box on Good Governance Practices in a Pandemic. ठीक है, तो पेंडेमिक में आपके पास क्या क्या आइडियाज़ हैं फॉर द गुड गवर्नेंस. तो उनके लिए उन्होंने एक आइडियाज़ बॉक्स रखा है जिसमें कि people can contribute with their ideas only. Okay, nothing else is allowed. तो गुड गवर्नेंस, अच्छा गुड गवर्नेंस से मुझे एक चीज़ याद आई दैट ऑन हुज बर्थडे गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड. I hope you all know that, and I would be glad if you all are able to answer that in the comment section below. Okay, तो गुड गवर्नेंस जो डे है वो किस एक पॉलिटिकल लीडर हैं, ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर, उनके बर्थडे पे मनाई जाती है गुड गवर्नेंस डे. तो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. I'd be glad. Okay, so the ideas box for crowdsourcing of ideas has been operationalized both on DARPG as well as on the My Government platform. ठीक है, तो वो ideas box है जो लाया गया है जिसमें जो आपके ब्यूरोक्रेट्स है, जो the people who are in the administration, public administration, they can put their ideas there. So I guess this was all about the articles of November month. For this video it was sufficient, I guess. Okay, and I hope you all are liking the video and you all are also understanding that how I'm trying to connect you all to the topic and also to the other things. And I hope that you all are happy to see these lectures, and I would like to request you all to like the lecture and also do not forget to apply for the comeback challenge on Unacademy. Okay, thanks for watching. Keep learning with us.